Hello students, today we are going to discuss the very important topic of banking and insurance, that is principles of insurance. So let's start the topic. So let me start by explaining the meaning of insurance. So insurance is a contract of indemnity in which insurance company or insurer agrees to pay certain sum of money to compensate loss caused by an occurrence of an uncertain event in return of periodical payment which is known as premium. तो बेसिकली इसमें कंपनी लॉस को कंपनसेट कर देती है इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट और इन रिटर्न जो आप पे करते हो डैट इज प्रीमियम। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं एक अरेंजमेंट है जिसमें कंपनी क्या करती है लॉस को कंपनसेट करती है। और लॉस किस तरह का हो सकता है, किसी भी इलनेस का, डेथ का या कोई डैमेज का, और इन रिटर्न आपको क्या पे करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक प्रीमियम पे करना पड़ता है। Now let me discuss the definition of insurance. First we will see definition in financial sense and then in legal sense. In financial sense, it is a social device in which a group of individuals transfer risk to another party in order to combine loss experience which permits statistical prediction of loss and provide for payment of loss from funds contributed by all members who transferred risk. So in legal sense, it is a contract by which one party, in consideration of price paid to him proportionate to risk, provide security to other party that he shall not suffer loss, damage or prejudice by the happening of certain specified events. Insurance is meant to protect insured against uncertain events which may cause disadvantage to him. Now we have various principles of insurance, that is insurable interest, utmost good faith, indemnity, subrogation, contribution, proximate cost, mitigation of loss. Now starting with the first principle, that is principle of insurable interest, which means a person taking insurance should have insurable interest in the subject matter. दैट मीन्स जब तक सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है तब तक आपको उससे फाइनेंशियल गेन हो रहा है, एंड जब सब्जेक्ट मैटर अगर एग्जिस्ट ना हो या वो डिस्ट्रॉयड हो जाए तब आपको क्या हो रहा है, उससे फाइनेंशियल लॉस। तो दैट इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज़ व्हेन एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट इन इंश्योरेंस। तो बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस है उस पर जो एग्जिस्ट होता है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी, और मेरीन इंश्योरेंस में इट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। इन प्रॉपर्टी एंड अदर इंश्योरेंस it should be present both at the time of purchasing the policy and at the time of loss. If we talk about insurable interest in life insurance, one must have insurable interest in one's own life, and in case of others life there are two types. One is where you require a proof and in other where proof is not required. So proof is not required in case of husband and wife relationship. For example, husband अपने वाइफ की भी इंश्योरेंस करा सकता है और वाइफ अपने हस्बैंड की भी इंश्योरेंस करा सकती है। अब प्रूफ रिक्वायर्ड कहाँ है, अगर कोई बिजनेस रिलेशनशिप है या फैमिली रिलेशनशिप है तो उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रूफ आपको रिक्वायर्ड होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नाउ गुड फेथ का यहाँ पे मतलब क्या है, गुड फेथ मीन्स एब्सेंस ऑफ फ्रॉड। Both the parties should have good faith and should disclose all material facts and should not hide anything. For example, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो then each and every information about your lifestyle, family medical history, risk behavior, ये सब disclose होना चाहिए. Now the next principle is the principle of indemnity, which means that the payment should be made only up to the amount of actual loss and should not exceed the actual amount of loss. That means one should not make profit by taking insurance policy. फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप ओनर है, वो अपने गुड्स की इंश्योरेंस कराता है 8 लाख रुपीज़ की, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फायर लग जाती है और उसकी जो शॉप होती है वो डैमेज हो जाती है और उसके गुड्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है जो उसके गुड्स हैं वो 3 लाख वर्थ के क्या हुए हैं,
डिस्ट्रॉय हुए हैं, तब उसको 1 लाख रुपीज़ नहीं मिलेंगे, उसको सिर्फ जितना उसका लॉस हुआ है 3 लाख उतने ही उसे कंपनसेशन मिलेगी। Now the next principle is principle of subrogation, which means stepping into shoes of others. That means after settling the claim, right of ownership of damaged property, जो property आपकी damage हो जाती है वो pass हो जाती है to insurer from insured. Now with the help of example हम इस principle को better understand कर सकते हैं. For example, एक्स के पास प्लांट एंड मशीनरी थी जिसकी उसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी फॉर 1,50,000 और प्लांट फायर से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब एक्स को कंपनी पेमेंट कर देती है उसकी कंपनसेशन उसकी लॉस की, तो अब जो राइट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर या जो भी स्क्रैप होएगा, जो भी उसकी वैल्यू मिलेगी उस डिस्ट्रॉयड प्लांट को सेल करके, तो वो सेल प्रोसीड किसका हक होगा, उस कंपनी का। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। समटाइम पर्सन सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस मोर देन वन कंपनी से करवा लेता है, बट इन केस ऑफ लॉस ही कैनॉट मेक प्रॉफिट बाय टेकिंग कंपनसेशन फ्रॉम डिफरेंट कंपनी। इन दैट केस लॉस की जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी वो होगी इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिसीज ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर। अब हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। मिस्टर सिंह ने अपने हाउस की इंश्योरेंस कराई है फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज एक्स वाई जेड। एक्स से 50,000 से, वाई से 1 लाख, जेड से 1,50,000, तो टोटल जो वैल्यू है 3 लाख। सपोज की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो हाउस है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका जो लॉस होता है डैट इज 60,000। अब जो लॉस होगा वो कंट्रीब्यूट होगा इन द प्रोपोर्शन टू देयर शेयर। एक्स कंट्रीब्यूट करेगा 50,000 अपॉन 3 लाख, वाई 1 लाख अपॉन 3 लाख, जेड करेगा 1,50,000 अपॉन 3 लाख। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल पे हम मूव करेंगे। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। अब प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है नियरेस्ट कॉज। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉस होता है और लॉस के पीछे मोर देन वन कॉज है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने पेमेंट करनी है, कंपनसेशन पे करनी है, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि नियरेस्ट या डायरेक्ट कॉज क्या है और उसी को ही कंसिडर किया जाएगा रीज़न फॉर द एक्चुअल कॉज ऑफ लॉस। अब हम इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से उसको हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। अब जब हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसको क्या हो गया, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ कैच हो गया जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जब कंपनसेशन पे करने की बारी होती है तो कोर्ट क्या डिसीजन लेती है कि जो डेथ हुई थी उसका ओरिजिनल कॉज था, उसको वो डिजीज़ कैच हुआ और इस केस में जो क्लेम होगा वो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंडर नहीं पे होगा। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मीन्स होता है कि टू मिनिमाइज द लॉस। जब भी लॉस होता है तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू टेक ऑल द स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्ट्री है और उसको फायर कैच हो जाती है और उसकी आपने इंश्योरेंस कराई हुई है, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ओनर टू टेक ऑल द स्टेप्स टू कंट्रोल फायर। So this was all about the various principle of insurance. Thank you.